और फिर ये पूरा एक साल की जर्नी रहती है. इफ यू फेल एट वन स्टेज सो अगेन बैक टू नंबर बैक टू वन स्क्वायर वन. प्रीलिम्स. मन में था लेकिन हम चले गए प्राइवेट सेक्टर में जॉब के लिए, फिर आया कि नहीं नहीं यही करना है. व्हाट विल बी योर 2 or 3 मेजर एडवाइसेस कि यार ये तो करना ही चाहिए सब लोगों को? आई वुड से कि ग्रेजुएशन में स्टार्ट कर देना चाहिए. So, hi guys, we have Tanisha with us today, and she was our student in the interview program, and she has scored the rank 400 dot. So, Tanisha, tell us how your preparation journey has been. Yes. So hello everyone. As sir has just introduced me. So talking about my preparation began in 2019, and this was my third attempt. In my first attempt, I was not able to clear mains. In my second attempt, I was not able to clear prelims only. So this time, this was my third attempt, and gratefully I made it. So the journey was full of ups and downs. High moments भी थे, low moments भी थे. But वही था कि consistency बनाए रखी and हो गया. Part of the game है, high or low or tough तो ही. But this was your which attempt, Tanisha? Third attempt. Third attempt. So from 19 to basically we are in 23. 3.5-4 साल की जर्नी तो फिर भी हो ही गई. हाँ. This was your first interview, right? Yes, sir. This was my first interview stage. And mains? Mains was second. Second. I gave me 2020. And being from, people might not be knowing, being from Delhi, you had that advantage. With your home is at Delhi, your college, and obviously Delhi is the hub of coachings. So easy to raha, but still, even you haven't gone for full-fledged coachings as such. In tits and bits, as we were just discussing, in tits and bits, you have taken some help from here and there, and that is how you have also prepared, right? It was not a full classroom continuous foundation batch wala coaching तो तुमने भी नहीं किया. It was just weekend started. Foundation batch wala coaching. Weekend foundation batch. Weekend 2019 में. Yes. That is how you started, and then it turned to test series और फिर mains वाली तैयारी और basically Exactly. basically तुमने भी मतलब अच्छा you started the foundation coaching in your third year, right? Yes, sir. When I was in third year. So at that point, I joined weekend batch. So Saturday, Sunday, I used to go for the coaching classes. Cool. So what do you think is the right moment for any fresher or somebody living in Delhi and, graduating from Delhi, that one should start preparing from when? In the third year with your experience, or after the graduation? Sir, I would say it totally depends person to person. I was capable and मेरे पास इतना था time भी कि मैं Saturday Sunday coaching avail कर सकती थी. So that's why I joined in third year. But कई लोगों का नहीं हो पाता. If their graduation, for example, थोड़ी complex है और दिल्ली में नहीं है, तो उस time पे they prefer कि coaching के graduation के बाद coaching join करें. सो आई थिंक ये सब पे डिपेंड करता है, बट आई वुड से कि ग्रेजुएशन में स्टार्ट कर देना चाहिए. इफ यू आर इन थर्ड ईयर, अगर आप कोचिंग ज्वाइन नहीं भी कर रहे हो, तो आई वुड सजेस्ट कि बेसिक लेवल पे खुद शुरू कर देना चाहिए. बी इट बेसिक एनसीईआरटी या फिर जो एक लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम बुक्स होती हैं, उसकी एक बारी रीडिंग गो थ्रू उसको जरूर करना चाहिए. सो आई वुड से ग्रेजुएशन इज द राइट टाइम. So you mean to say preparation start कर देनी चाहिए on your own subconsciously Yes. या एक कॉन्शियस एफर्ट से कि भाई ये सिलेबस है, ये बुक्स हैं, खुद से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर obviously if somebody can avail the coaching, you can avail the coaching, but Yes, sir. the time can begin from graduation is what you're saying. Should begin from graduation rather. Yes, sir. I think it should begin from graduation. हाँ, बिकॉज फिर एक एज हो जाता है आपको कहीं ना कहीं आधा हाफ अ ईयर 1 year का एक एज रहेगा दूसरों से बिफोर यू बिगिन योर अटेम्प्ट जर्नी. यस सर. इफ हैव फाइनलाइज्ड कि हाँ मुझे ये यूपीएससी का करना ही है, सो आई वुड से कि ग्रेजुएशन में स्टार्ट कर देना चाहिए विद न्यूज़पेपर रीडिंग एंड बेसिक एनसीईआरटीज. ये सर वो ज्यादा बड़ी चीज है कि फाइनलाइज है या नहीं है. यस सर. कि यस यूपीएससी ही करना है या नहीं करना, बिकॉज इस बार वाला प्री तो तुमने भी देखा होगा, इट्स अनसर्टेन एंड यूपीएससी इटसेल्फ इज अनसर्टेन. एग्जैक्टली. यस सर. Even disregarding this pre, UPSC is uncertain.
यस सर, आई थिंक प्रीलिम्स भी मेंस भी अनसर्टेनिटी तो दिख ही जाती है यूपीएससी में हर लेवल पे, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, फिर मार्किंग वगैरह, तो उसके लिए भी अलग से प्रिपेयर माइंड को करना पड़ता है कि ये करना है तो अनसर्टेनिटी भी लेनी पड़ेगी. So didn't you feel Danix above? No sir, I have filled group A services above Danix. Acha. Oh. Otherwise, people from Delhi or NCR usually prefer Danips and Danix both, Yes sir, but even above railways or yes sir, group A services, railways, postal service, and all other ones. postal के भी नीचे भरा है Danix Danips. हाँ सर, ग्रुप बी मैंने सारी ग्रुप ए के बाद ही भरा है. That is also unusual. I guess we had this conversation in our DAF session as well, because usually people from Delhi or NCR will fill that upwards. So that's the common way. 90% of people will do that. ऐसा क्यों किया हाँ, तनीषा ने? आई टुक योर डैप सेशन, बट तब तक मैं भर चुकी थी प्रेफरेंसेस हाँ, अपनी, yes, yes, yes. तो आई वाज लेट आपका सेशन देखने में. हम्म. मतलब I must have pointed out. I don't know. I was just forgetting, क्योंकि कोई भी नहीं करता है ऐसे जो तुमने किया है. दिल्ली एनसीआर का बंदा हमेशा विल फिल. कई लोग तो इनफैक्ट डैनिप्स को काफी हाई भरते हैं. सर मैंने पहली प्रेफरेंस में ना डैनिक्स को हाई ही भरा था, बट देन समवन टोल्ड मी कि आप इसको नीचे ही भरो, ग्रुप ए सर्विसेज आर फार बेटर देन डैनिक्स, सो आई वेंट विद व्हाट दे सेड. वैसे अपना अपना इतना है बट. आइडिया तो हम्म. मतलब इतना आइडिया तो था नहीं सर्विसेज का, हाँ, उस वक्त तो इस पता नहीं होता. कूल कूल कूल. अब काफी लोग बोल रहे होंगे कि यहीं पढ़ देते तो यहीं रहते, बिकॉज आ, थोड़े बहुत रिलेटिव्स तो कह रहे हैं, बट बाकी ज्यादा मेरे को कोई कह नहीं रहा है ऐसे. मतलब दे आर हैप्पी कि अगर ग्रुप ए सर्विस भी है तो, हाँ. नहीं डैनिक्स नहीं है. नहीं, ऑब्वियसली group A service, no doubt, but that affinity to your, people around you will always say, वो तो, even if you become IAS and suppose you are going outside your state, then people around you will obviously prefer that अगर आप यहीं रहते, अपने स्टेट में रहते तो that's a normal affinity. People around you will always have that thing in their mind, right? Yes, sir. So तनीषा ने कितनी मूवीज देखी लास्ट ईयर में? लास्ट ईयर में मतलब प्रिपरेशन के टाइम, मेंस तक तो मुझे अच्छे से याद है मैंने एक भी मूवी नहीं देखी थी. मेंस के बाद मैंने देखना शुरू किया, थोड़ी बहुत देखी, वो भी जब तक रिजल्ट नहीं आया था, फिर उसके बाद फिर बंद हो गया. अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है ऐसा ऐसा क्या है इस प्रिपरेशन में which like tests your kind of resolve, character, determination, or why it is so tough? Like what is the toughest thing in this exam? सर आई थिंक कि एक तो यही है कि सिलेबस है इसमें काफी ज्यादा. Why? आपको हर सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आप जिस भी बैकग्राउंड से हो आपको दूसरा बैकग्राउंड अच्छे Please से करना. पढ़ना पड़ेगा. एंड सेकंड सर ये है कि इसमें हर पेपर का पैटर्न अलग है. प्रीलिम्स के लिए तैयारी करने का तरीका अलग है, मेंस के लिए तरीका अलग है. आंसर राइटिंग हो गई या जो भी, उसमें कंसिस्टेंसी बनानी पड़ती है. तो वो एक अपने आप में चैलेंज रहता है कि हाँ मुझे डेली आंसर्स लिखने हैं, मुझे डेली 9 से 10 घंटे पढ़ाई करनी है. फिर इंटरव्यू में यू नीड टू एक्सपोज योर सेल्फ कंपेरेटिवली ज्यादा, लोगों से मिलो, और जितने मॉक इंटरव्यू दे सको उतना एक्सपीरियंस लो. और फिर ये पूरा एक साल की जर्नी रहती है. इफ यू फेल एट वन स्टेज तो अगेन बैक टू नंबर Back to वन square one. प्रीलिम्स. यस, तो इसलिए सर थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. तो don't you feel in foundation courses जो जनरली चल रहे हैं, प्री और मेंस का जो इंटीग्रेटेड और वो मिक्सचर हो जाता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, तो प्रिपरेशन में भी फेजेस होने चाहिए इन फाउंडेशन कोर्सेज में भी. कहीं ना कहीं इफ सपोज देयर इज अ क्लियर कट डिस्टिंक्शन कि शुरुआत वाले पीरियड में कोर सब्जेक्ट्स होंगे, पॉलिटी को, ज्योग्राफी, एंड देन विल बिगिन द मेंस जर्नी, तो वो ज्यादा अच्छा नहीं रहे प्रिपरेशन में? व्हाट अकॉर्डिंग टू यू? यस सर, इवन आई फील दिस थिंग कि अगर हम पहले प्रीलिम्स वाले सब्जेक्ट्स जो हैं उन पे फोकस करें, उनको थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर ले, एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली वी मूव टू अदर सब्जेक्ट्स जो सिर्फ मेंस के पर्पस से हैं, तो इट वुड बी बेटर. हम इजीली सेग्रीगेट कर लेंगे चीजों को, एक टाइम टेबल भी सही रहेगा हमारा, और वो टाइम से टाइम सब्जेक्ट्स कवर होते रहेंगे. तो आई थिंक दिस इज द केस. हाँ, सो मतलब बेसिकली
देयर शुड बी, हम पढ़ते हैं और तैयारी तो ऐसे ही करते हैं, प्री का जोन अलग होता है, मेंस का अलग होता है, लेकिन जब यूजुअली कोचिंग में फाउंडेशन में जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो इंटीग्रेटेड और वो सब मिक्स खिचड़ी चल रही होती है, पता भी नहीं लगता कि सेग्रीगेट कहाँ करना है, क्या करना है, और कुछ टाइम निकल चुका होता है, 5-6 महीने बाद रियलाइज होता है कि ओ अच्छा ये चल रहा था। सो ऑब्वियसली इट विल बी बेटर अगर फेजेस रहे। यस, ये तो सर थोड़ी डिफिकल्टी मुझे भी आई थी फाउंडेशन कोर्स में, क्योंकि उनका अपना तरीका होता है सब्जेक्ट्स को कराने का। वो बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से करवाते हैं, प्री मेंस सब कुछ मिलाकर अपने तरीके से सब्जेक्ट्स चलते हैं। तो उस टाइम जब स्टार्टिंग में इतनी क्लैरिटी नहीं थी कि किसी सब्जेक्ट को किस तरीके से करना है, वो समझ मुझे बहुत बाद में जाकर आई। जब मैंने पहले प्रीलिम्स दिया तब जाकर पता चला कि प्रीलिम्स को करने का तरीका अलग है, मेंस अलग करने है, का तरीका अलग दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि अगर इस चीज को इनकॉर्पोरेट फाउंडेशन कोर्सेज में कर लिया जाए तो थोड़ा और लोगों का टाइम बच सकता है, और इट कैन बी फार बेटर अप्रोच इज व्हाट इवन वी थिंक। In fact, we have why I asked this is also because we were taking feedback and we have incorporated this approach in our foundation course. We have divided it in phase one and phase two. Phase one है। में क्योंकि ठीक है, I have also cleared, Abhijit is also cleared. So we thought of it कि यार ये distinction कर ही क्यों रखा है, मतलब ये इंटीग्रेटेड का क्या मतलब नाटक है, ड्रामा है, इसको अलग ही कर दो ना, मतलब हाउ डज इट मैटर। अच्छा, हाँ ये रियल इंटीग्रेशन भी तब है ना कि पहले कोर सब्जेक्ट हो जाए, उसके बाद न्यूज़पेपर भी ज्यादा समझ में आता है, बेस भी बन चुका होता है, तो जीएस का आंसर और लेवल जो इन डेप्थ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच भी थोड़ी बहुत डेवलप हो चुकी होती है। अब आपको हाँ ये को जीरो आता है और आप जीएस 2 का या 3 का आंसर कर रहे हो, जिसके अंदर रेगुलेटरी मैकेनिज्म वगैरह कुछ है सपोज, विच इज पार्ट ऑफ पॉलिटी एज वेल एज रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑफ सम economic field, economic era, banking, whatever. So then it has amalgamation of both the topics, right? Both the kind of spheres of quality as well as eco. तो वो करने से पहले अब पढ़ा हुआ तो है ही नहीं और अचानक से GS3 स्टार्ट हो गया है, तो आप सोच नहीं पाते इतना। हाँ, तो ये वही है, फेजेस में भी होना चाहिए एंड थोड़ा उस हिसाब से जैसे मेंस में होता है ना जीएस सब्जेक्ट्स मिलकर, तो उसके में बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, बेटर प्लस अंडरस्टैंडिंग। न्यूज़पेपर भी बेटर अंडरस्टैंडिंग, न्यूज़पेपर भी सही से समझ आएगा। अच्छा, तुमको क्या लगता है न्यूज़पेपर, तुमने बोला हाउ इम्पोर्टेंट इज न्यूज़पेपर, वो सॉरी सर व्हाट? हाउ इम्पोर्टेंट इज न्यूज़पेपर? सर न्यूज़पेपर तो सच में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले तो मेरे को भी बहुत दिक्कत होती थी, मैं 2.5-3 घंटे लगा देती थी न्यूज़पेपर पढ़ने में, समझ नहीं आता था क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है। बट उसके बाद मुझे लगता है मेंस में ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं न्यूज़पेपर। प्रीलिम्स में इतना नहीं है, पर मेंस में स्पेशली जो एडिटोरियल्स हैं उसमें से मैं काफी सारे केसेस उठाती थी, जो कि फिर मैं उसको एग्जांपल्स में मेंशन कर सकती थी, जीएस 4 में, जीएस 2 में। तो उस चीज के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और सेकेंड, एडिटोरियल्स में से कभी कोई ऐसी कोट आ गई या किसी फेमस पर्सन ने कुछ बोला है किसी के बारे में, तो वो भी आप आंसर्स में कभी कभी मेंशन कर सकते हो। हाँ, मतलब बेसिकली न्यूज़पेपर रिपोजिटरी खजाना है वो, मतलब वहां से इंट्रोडक्शन भी मिलेगा, स्ट्रक्चर भी यस। मिलेगा, आंसर का समझ भी मिलेगी, कभी कभी यस। आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे, डेटा मिलेगा, तो मतलब न्यूज़पेपर इज रिपोजिटरी। और अगर कंपाइलेशंस पे डिपेंड करते हो ना इंटायरली, और ये स्किल डेवलप नहीं होती जो तुमने डेवलप करी 2.5-2.5 घंटे पढ़ के एज यू जस्ट सेड, तो फिर आप पिकअप नहीं कर पाते, फिर वो अप्लाई नहीं कर पाते मेंस के अंदर भी और एग्जाम्स में भी, मतलब इवन प्री हाँ। में भी उतना रिटेंशन नहीं रहेगा अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ोगे। हाँ, प्री में भी और मेंस में भी आई थिंक काफी हेल्पफुल रहता है। सिर्फ करंट अफेयर्स अगर मंथली मैगजीन्स पे ध्यान दें तो उस टाइम इतना रिटेंशन नहीं हो पाएगा। अगर आप पूरे महीने न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आपको एक आइडिया रहता है कि क्या क्या चल रहा है, क्या क्या टॉपिक्स चल रहे हैं उसको, और एक टॉपिक को किस तरीके से एनालाइज करके चलना है। तो फिर बाद में मेंस के टाइम थोड़ा इजी हो जाता है आंसर्स लिखना, क्योंकि वो चीज आपने डायरेक्टली पढ़ी है, डायरेक्टली उसके नोट्स बनाए हैं, कंपेयर टू अगर आप किसी मंथली मैगजीन पे पूरे भरोसे रहोगे तो। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग सबसे टफेस्ट स्टेज कौन सी है, प्री, मेंस, इंटरव्यू? इंटरव्यू तो मुझे नहीं लगता, इंटरव्यू तो कंफर्टेबल हो गई तो बाद में। सर हाँ, इंटरव्यू में मेरे को सबसे ज्यादा कंफर्टेबल इंटरव्यू ही था मेरे लिए। वही तो कह और रहा हूँ। हाँ हाँ। सर, उसके बाद मुझे लगता है प्री, और थोड़ा मेरे लिए प्री से ज्यादा मेंस था, क्योंकि मेरा ऑप्शनल जो था वो काफी ज्यादा वाइड था। तो मुझे बहुत दिक्कत होती, और ऑप्शनल का कोई कनेक्ट नहीं था जीएस सब्जेक्ट्स के साथ, तो काफी दिक्कत होती थी बैलेंस करने में जीएस को और ऑप्शनल को, और कितना टाइम किसको दूं। तो इसलिए मेंस थोड़ा मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड था। एंड प्री? सर प्री भी था, बट इस बारी मैंने थर्ड अटेम्प्ट में
प्री में जो मेरी स्ट्रैटेजी थी उसको मैंने मतलब काफी अच्छे से बेसिक वगैरह किया, तो प्रीलिम्स में मुझे इस बारी काफी आसानी रही और मेरा प्री का स्कोर भी काफी अच्छा ही रहा था। What was your score? सर इट वाज अराउंड 114.4। हाँ, तो that's comfortably above the cutoff. हाँ इससे भी बहुत फर्क पड़ता है, मतलब प्री अगर बहुत आराम से क्लियर हो रहा हो ना, और अगले ही दिन हमको एहसास हो कि मेरा प्री निकल रहा है, तो विद इन 5-7 days वी कैन स्टार्ट स्टडिंग। अदरवाइज वो 15-20 days का अनसर्टेन कहीं ना कहीं पीरियड निकल जाता है, एंड देन हाँ वो हम उस पीरियड को कभी मैच ही नहीं कर पाते ना। 20 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ, तो इट हैपेंड विद मी, मेरे को थोड़ा हो गया था कि मेरा प्री क्लियर हो जाएगा, तो मैंने मेंस की तैयारी भी एकदम स्टार्ट कर कल दी। विच इज क्रूशल। अगर बाउंड्री पे हो रहा होता है तो अपन लास्ट तक लटकते रहते हैं साइकोलॉजिकली कि होगा नहीं होगा, अरे क्या पढ़े नहीं पढ़े। हाँ, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड रहता है, पता नहीं प्रीलिम्स हुआ है या नहीं हुआ है, पढ़ने का भी मन करता है नहीं करता है, ये ऐसा रहता है अगर आपको श्योरिटी ना हो। तो तुम्हें सिविल सर्विसेज का सोचा कैसे, मतलब हाउ who gave you the idea, or how you imagined, or what inspired you, how you came here? सर आई वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम माय मैटरनल ग्रैंडफादर, मेरे नाना जी, ही वाज इनटू डायनेक्स। तो अच्छा। उस टाइम, यस सर, सो आई वाज इन 7th और 8th स्टैंडर्ड, जब मुझे थोड़ा आइडिया हुआ कि क्या चीज है ये क्या नहीं है, तो एक उस टाइम पर मुझे इनिशियल पुश हुआ था कि आई वांट टू डू समथिंग सिमिलर टू दिस। फिर बाद में 12th कंप्लीट होकर जब हुआ कि अब क्या करना है आगे, तो आई फाइनली डिसाइडेड कि आई विल गो विद यूपीएससी। तो इस तरीके से ही वाज माय इंस्पिरेशन। तो इंस्पिरेशन वाज प्रीटी अर्ली, 7th 8th, तो मतलब सबकॉन्शियसली एक हल्का हल्का था, इंक्लिनेशन था कि करना है। यस सर, हाँ बिल्कुल। बिकॉज most of the toppers what I am finding is there was some inclination long ago when it triggered। कई लोगों का ट्रिगर लेट हुआ है, कई लोगों ने मन में था लेकिन हम चले गए प्राइवेट सेक्टर में जॉब के लिए, फिर आया कि नहीं नहीं यही करना है। इट माइट हैव ट्रिगर्ड लेट बट मन में था। ऑलमोस्ट सबके आंसर्स ऐसे हैं। दैट यस इज दैट इज अ वेरी कॉमन फीचर्स। ऐसे एथिक्स का क्या कहानी है तुम्हारे हिसाब से, उसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए? सर ऐसे का अगर बोलूं तो मतलब मैंने तो इस तरीके से किया था, मैंने टॉपिक्स अपने बना लिए थे ऐसे के, जैसे पॉवर्टी हो गया, वुमेन हो गया, चिल्ड्रन हो गया। पर अब उस तरीके से ऐसे नहीं आ रहे हैं, आ अब नहीं तो रहे हैं। काफी पैटर्न चेंज हो गया है। तो इस फिलोसफिकल। बारी मैंने इस तरीके के ऐसे की प्रैक्टिस करी थी, फिलोसफिकल वाले भी और वो भी। तो फिलोसफिकल में मेरी स्ट्रैटेजी तो यही रहती थी कि मेरे पास ऐसे दो ऐसे हैं, तो एक ऐसे में मैं ट्राई करती थी उसको वही पेस्टल अप्रोच देने का, कि जो भी टॉपिक है उसमें से मैं जैसे तैसे पॉलिटी, ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिक, हिस्ट्री, उस तरीके से। एंड दूसरा ऐसे में मैं एग्जांपल्स देती थी, जैसे गांधी जी के एग्जाम्पल दे दिए, टैगोर जी के दे दिए, तो जो भी टॉपिक था उससे कनेक्ट करके फिर मैं एग्जाम्पल्स देती थी। तो ऐसे में मेरी यही दो स्ट्रैटेजी रहती थी फिलोसफिकल वाले में। और उसके अलावा एथिक्स में मैंने, फ्रेमवर्क्स में पूरा जितना वाइडर होराइजन है कवर कर लो बेसिकली। हाँ यस यस सर। और उसके बाद सर एथिक्स में आई थिंक केस स्टडीज काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो मैंने मेंस में जब प्रीलिम्स और मेंस के बीच में डेली आई यूज्ड टू राइट वन केस स्टडी मिनिमम, ताकि एक अच्छा होल्ड बना रहे। और उसके अलावा टेस्ट सीरीज भी मैंने एथिक्स की ज्वाइन करी थी, तो वो पहले करी थी, इस बारी नहीं करी थी। तो उसमें एथिक्स में यही होता है कि केस स्टडी जो है ना, आप टॉपर्स की आंसर कॉपी देखो कि उन्होंने किस तरीके से केस स्टडीज करी हुई है, तो उससे काफी अच्छा आइडिया लग जाता है कि केस स्टडी को किस तरीके से लिखना है, क्या पॉइंट्स कवर करने हैं। और दूसरा एथिक्स में ये होता है कि अगेन आई वुड से एग्जांपल्स आप ज्यादा अच्छे से दे सकते हैं। जो बाकी के 10 मार्कर वाले होते हैं, कोई कोट एक्सप्लेन करनी है या कुछ और चीज लिखना है, तो उस केस में मैंने जैसे कहा था, न्यूज़पेपर से मैंने काफी एग्जांपल्स लिए थे कि अगर कोई कंपैशन पे आता है तो आई विल राइट दिस एग्जांपल, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पे होता है तो आई विल गिव दिस एग्जांपल। तो उसकी भी एक अलग से लिस्ट बना ली थी मैंने। तो ये चीज मेरे को काफी एथिक्स में हेल्प करी थी। हम्म। प्रिपरेशन तनिषा ने सॉलिड करी है। नो नो, ऑब्वियसली the more better you prep, because in today's exam you don't find time, मतलब already आपका काफी prepared होना चाहिए। by preparation it doesn't mean route learning, मतलब रटा हुआ नहीं, but हाँ, as you said कि almost सारी तैयारी आपकी readiness रहती है, तो आंसर में फटाफट से you can incorporate, you can start writing, ये टाइम तो मिलता ही नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं सर, तो वो
मेंस में उस टाइम पे तो 3 घंटे जो है ना, उसके लिए आपको बहुत पहले से जितना हो सके मटेरियल अपना रेडी करके रखो कि ये इस तरीके से आया तो आपकी मैं ये लिख। थिंकिंग भी हो चुकी, चेंज हो जानी चाहिए या फिर मैच करनी चाहिए टू द नीड ऑफ एग्जाम, सो दैट वट एवर योर थिंकिंग इज ऑल्सो इन सिंक विद वॉट यूर राइटिंग, और उसका टाइम इतना नहीं होता कि आप कुछ अलग हो फिर कुछ अलग रट के फिर उसको वहां लिख दो, वो भी नहीं हो सकता। हाँ यस सर, ये भी चीज बहुत होती है। तो वही आंसर राइटिंग के टाइप पे आप अपना ना उस तरीके से थिंकिंग शुरू कर दो। वही जैसे अगर न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं तो किसी टॉपिक को उस तरीके से एनालाइज करने लगो, तो इट रियली हेल्प्स। So, did you watch some debates, documentaries, or some sorts of extra material जो लोग नहीं करते हैं, या which is not the bookish kind of material? Did you vouched on some sort, or you're like no, strictly यही सब नहीं पढ़ा ज्यादा, सर नहीं कोई देखा? से डिबेट कोई नहीं देखी, बट आई यूज टू वॉच यूट्यूब वीडियोस। कोई टॉपिक मुझे नहीं समझ आ रहा तो वो वीडियोस वगैरह देखी है मैंने, पर कभी मैंने डिबेट वगैरह राज्यसभा की नहीं देखी ऐसे। हाँ मतलब सनसेट टीवी डिबेट्स नहीं देखी है। बट वो नहीं। एक ही बात है, अगर तुमने यूट्यूब पे टॉपिक सर्च कर लिए तो बेसिकली वो ब्रेनस्टॉर्मिंग तो हो ही गई। हाँ, यूट्यूब पे मैं फॉलो करती थी, तो डेली मैं वीडियोस देख लेती थी, उसमें एक टॉपिक को अच्छे से कवर किया होता था। इवन कई कोचिंग वगैरह वाले न्यूज़पेपर की भी एक वीडियोस जो डालते हैं, एनालिसिस तो एनालिसिस। उसकी कभी कभी हेल्प हो जाती है। हाँ तो एक ओवरव्यू मिल जाता है उससे। तुम्हारे सब्जेक्ट्स क्या थे 12th में? सर मेरे पास थी पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो। बायो, शिफ्ट फ्रॉम साइंस? यस सर, बायो मैंने मतलब साइंस मैंने जानकारी ली थी बिकॉज बायो में इंटरेस्ट था मेरा, तो मुझे बायोलॉजी पढ़नी थी। पर क्लियर था कि एमबीबीएस नहीं करनी, करना यूपीएससी है। इंटरेस्ट के करते बायोलॉजी ले ली, फिर बॉटनी ले ली आगे। और फिर उसमें देखा कि ऑप्शनल में है बॉटनी अवेलेबल, तो आई ऑप्टेड फॉर इट। ये भी रेयर है क्योंकि जो भी आजकल बायो लेते हैं वो नीट तो देते ही देते हैं। कम ही लोग होंगे जो हाँ नीट पे टाइम वेस्ट ना करें, क्लियर कट रहे, नहीं देना और बॉटनी करें, और मतलब कम सर लोग होंगे। नीट भी था, पर वो ऐसे ही देने वाला ही दिया था, पर हाँ कुछ मतलब था नहीं उसमें। यू वर फोकस्ड ऑन यूपीएससी, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। यस सर। हमारा एजेंडा क्लियर था कि हाँ यही करना है। वो नहीं होता ना हाँ जनरली, सर बिल्कुल। 90% ऑफ पीपल विल गो फॉर अ प्रोफेशनल कोर्स कि नहीं यार, वी शुड हैव some sort of backing. MBBS will give you a backing for sure. You already are a हाँ doctor and then you can pursue. So, but you took that risk, which is a risk. We can't suggest to everybody, but that is how इट you इट went for your preparation. हाँ, वो मुझे थोड़ा सेकंड अटेम्प्ट जब नहीं हुआ तो थोड़ा लगा था लगा। कि यार, थोड़ा सा हुआ था कि सेकंड भी नहीं हुआ, दिस इज रिस्की। एंड सिर्फ ग्रेजुएशन करी हुई थी, तो So what will बस you वही। suggest to others? रिस्क लेनी चाहिए या सर नहीं? प्लान इम्पोर्टेंट होता है आई थिंक। हाँ, और यू आई थिंक प्लान इम्पोर्टेंट होता है एक, मतलब इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए शायद, नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अब काफी अनसर्टेन भी हो रहा है सर। तो इसलिए आई वुड से कि एक अगर थोड़ा सॉलिड ग्रेजुएशन चाहे किसी भी फील्ड में, एक प्रोफेशनल फील्ड में हो जाए, तो थोड़ा सा एक कामनेस भी रहती है। And which matters a lot because it can विच disturb you. मैटर। अगर अगर एक दो सक्सेसिव फेलियर मिल जाए, इवन एट लास्ट स्टेज, सपोज कोई इंटरव्यू जाकर भी सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, तो इट कैन रियली शेक यू अप। यस सर, डेफिनेटली इट डिस्टर्ब मी आफ्टर माय सेकंड अटेम्प्ट, जैसे मैंने आपको कहा था। बट उस टाइम मेरे को फिर ये था कि ओके, आई विल गिव थर्ड अटेम्प्ट एज माय लास्ट अटेम्प्ट, अगर नहीं होता है तो आई विल स्विच टू समथिंग एल्स। बट होपफुली हो गया। कूल। सो अच्छा, व्हाट डू यू प्रेफर, स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज और नॉन स्क्रिप्टेड? अपन तो नॉन स्क्रिप्टेड ही कर रहे हैं। मेरे को कई लोग टॉपर्स बोल चुके हैं कि सर आप बताओ क्या पूछ रहे हैं। मैंने कहा मेरे को नहीं पता, मैं अपन लेट्स गो विद द फ्लो, बिकॉज अदरवाइज अजीब सा हो जाता है। हाँ सर, इवन मुझे भी नॉन स्क्रिप्टेड ही सही रहता है। हाँ मतलब लेट्स टॉक अराउंड ऑनेस्टली, फ्रैंकली, एंड गो ahead with the conversation. यस एग्जैक्टली। As we had also discussed yesterday, let's try to give back to students as much as we can. And from your experience, if others can learn and you can be of some sort of inspiration to even somebody sitting at some place in India, it's great. That is how it should be. यस और सर, वही है सर। और आजकल YouTube से ये चीज तो हो ही रही है कि people can see the journeys, can get inspired. और बहुत लोग छोटे टाउन से, कोई कहाँ से, और सिटीज से, हर तरह से वैलिड बैकग्राउंड के लोग आ रहे हैं। मतलब डाइवर्सिटी इज देयर, विच इज द बेस्ट थिंग अबाउट दिस एग्जाम। मतलब व्हाट आई लाइक इज कि डाइवर्सिटी है।
यस सर, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। अब मुझे तो अब रियलाइज हुआ है, जैसे पता चल रहा है धीरे धीरे कि कोई किसी स्टेट से सिलेक्ट हुआ है, कोई किसी से कोई सिलेक्ट कहाँ हुआ से, है। यस। स्टेट बैकग्राउंड कल्चर, मतलब complete India gets showcased in the हाँ foundation बिल्कुल। course at Labasna. It's like okay, mini India is there, ऐसा रहता है, which is a यस। great thing. हालांकि तुमने इस बार का पेपर देखा, सीसैट? हाँ सर, देखा था। और सीसैट, व्हाट इज योर ओपिनियन कि सीसैट को इतना टफ बनाना चाहिए या मतलब थोड़ा सोबरिंग डाउन चाहिए? सर मैं तो यही कहूंगी कि थोड़ा कम ही होना चाहिए, बिकॉज कंसिडरिंग द फैक्ट हर कोई उस बैकग्राउंड से नहीं होता। नहीं। एंड सर मेरा खुद का एग्जांपल, मेरे पास मैथ बस 10th तक थी। तो मेरे लिए पहले भी सीसैट प्रिपेयर करना काफी टाइम गया था उसमें। और वैसे भी एक सिलेबस में भी कहीं ना कहीं है ये चीज कि 10th तक का रिलेटेड सिलेबस रहेगा। 10 तो तक उस का तो लेवल, नहीं है वो। हाँ। तो बट फिर भी सर आई वुड से कि हर बैकग्राउंड का बच्चा है, आर्ट्स का भी है, कॉमर्स विदाउट मैथ्स का भी है, तो उस लेवल का थोड़ा होना चाहिए। हाँ, अभी इट मैंने शुडंट बस बी ऑफ, हाई लेवल का हो चुका है। इट शुडंट बी ऑफ, एज यू जस्ट सेड, हाई लेवल, इट शुडंट बी ऑफ दिस इतनी टफनेस की शायद, मतलब उससे करना भी क्या चाह रहे हैं ये भी मुझे समझ में नहीं आया कि व्हाट इज द एग्जाम एजेंडा, व्हाट इज द थिंकिंग बिहाइंड इट। पेपर है वैसे भी, हम्म। क्वालिफाइंग पेपर है, तो हाँ मतलब उस जस्ट द हिसाब। क्वालिफाइंग पेपर, एग्जैक्टली। Why to make it so exorbitantly tough for few people who are not having maths or coming from different background and मतलब this sort of, ठीक है, मैथमेटिकल एबिलिटी चाहिए, डेटा इंटरप्रिटेशन आना चाहिए, समझ होनी चाहिए, ये सब सही है, बट why a question which takes 20 minutes, like that is anybody's guess. I don't think it should be there. दूसरी एक और ये जो only 2 और only 3 वाला जो हुआ है स्टार्ट, which is that is also not very right. सर इसमें तो बहुत ही ज्यादा एम्बिगिटी है कि आप कौन सी स्टेटमेंट सही समझ रहे हो, कौन सी नहीं समझ रहे। ओनली टू, ओनली थ्री, इट इज वेरी डिफिकल्ट, मतलब बहुत ज्यादा अनसर्टेन हो चुका है। ये एलिमिनेशन टेक्निक को तो एलिमिनेट करना चाहिए, नो डाउट, और कुछ हाँ। हल्की अनसर्टेनिटी इज आल्सो गुड बिकॉज सरप्राइज एलिमेंट इज देयर, रॉ टैलेंट विल कम आउट, पीपल विल बी मोर रेजिलिएंट एंड शुड बी मोर थरो विद द प्रिपरेशन, दैट ऑल इज फाइन। क्या आपने मॉडर्न हिस्ट्री के सडनली क्वेश्चन कम कर दिए, कोई बढ़ा दिए, व्हाटएवर, इट्स ओके, बट इस तरह के क्वेश्चन इतने ज्यादा करना और फिर जिसके अंदर किसी ने मतलब गलत सोचकर भी सही आंसर हो सकता है, तो उसका तो क्या पॉइंट है, उसका तो कोई पॉइंट। कोई किसी स्टेटमेंट को सही समझ रहा है वो गलत है, कोई गलत है वो सही है। लास्ट 2022 प्रीलिम्स में भी इस टाइप के क्वेश्चन थे, पर वो सिर्फ 5-6 थे। इस बार आई गेस बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, which is increase the ambiguity. That यस। doesn't mean कि एक क्रैकेबल था ही नहीं पेपर, ऐसा तो नहीं है, अभी भी 10-12 हजार लोग आएंगे और वो सब होगा, बट it has made things more uncertain and ambiguous, and कई बार तो रेलेवेंस पे भी क्वेश्चन मार्क है कि यार ये क्यों पूछा है, इसका मतलब क्या है, इससे वो चाह क्या रहे, so that यस। is there. Though obviously मतलब it can be handled by ways and means, but it is tough, that definitely it is tough. वो सब लोग यस। मतलब बहुत ही अजीब सा फ्रेंजीड माहौल है कि तैयारी कैसे करें, अब क्या करना पड़ेगा, इवन वी पीपल आर थिंकिंग कि यार व्हाट शुड बी द एडवाइस कि अब हाउ टू कवर सच अ वाइड एक्सपेंस, बिकॉज एक्सपेंस तो बढ़ गया है, हाँ बिल्कुल। फ्रॉम स्क्विरल टू मशरूम एवरीथिंग इज गेटिंग आस्क्ड, सो दैट इज देयर। व्हाट विल बी योर यस। 2 cents ऑफ एडवाइस टू, यार क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और कुछ चीजें जैसे तुमने जो 2-3 चीजें बोली हैं इनडायरेक्टली, बट एक तुमने जैसे कहा कि रिस्क कभी मतलब मत उतनी मत लो, ग्रेजुएशन शुड बी डन वेल, second is you can begin early, मतलब the more early you begin, the earlier you begin is better, so these यस। sort of things, but what will be your 2 or 3 major advices कि यार ये तो करना ही चाहिए सब लोगों को? सर इसके बाद आई वुड से कि जर्नी जब कोई स्टार्ट करता है ना, तो उसमें एक तो खुद के पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। व्हाट वी डू इज हम दूसरों की स्ट्रैटेजी पे खुद को फॉलो करने की कॉपी। कोशिश करते हैं। यस, दूसरों के टाइम टेबल पे। तो वो चीज नहीं करनी चाहिए। अपना खुद को एनालाइज करना चाहिए कि मैं कहाँ स्ट्रांग हूँ, कहाँ नहीं हूँ, और मेरा टाइम टेबल क्या बन सकता है, मेरे को क्या स्ट्रैटेजी सूट करेगी, उस अकॉर्डिंग। एंड इसके अलावा एक चीज मेरे को जो पर्सनली भी थोड़ी फील होती थी कि हम लोग इस पे तो बहुत फोकस करते हैं कि ये मॉक देना है, वो देना है, मतलब प्रिपरेशन लेवल पे तो होता है।
पर कहीं ना कहीं एक मेंटल लेवल पर भी यू नीड टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर एवरीथिंग, क्योंकि Yes. इस एग्जाम में बहुत लोज आते हैं और बहुत Yes. कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है। तो काफी दिन ऐसे होते हैं जब आपको बहुत ही ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। प्रीलिम्स का देख कर ही, प्रीलिम्स मेरा सेकंड Self अटेम्प्ट में, self यस belief is a very very major thing which a lot of people ignore. यस सर, सेल्फ बिलीफ, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए और हर टाइप की अनसर्टेनिटी को डील करने के लिए रेडी रहना चाहिए, खासकर कि प्रीलिम्स में, मेंस में, क्योंकि जो भी होगा वी विल फेस इट। मेरे साथ ये सेकंड प्रीलिम्स में हुआ था। प्रीलिम्स थोड़ा जब तब थोड़ा हुआ था तो आई गॉट समवॉट स्केयर्ड, घबरा गई थी मैं। तो आई फेल दैट प्रीलिम्स। तो यही चीज है एक, अगर प्रिपरेशन के साथ साथ इस चीज पे भी पूरा फोकस होना चाहिए, अपना माइंडसेट भी उस तरीके से बनाओ कि आई एम रेडी टू फेस वट एवर कम्स। तो एक और है, फेलियर का भी बहुत बड़ा वो सराउंड साउंड सिस्टम बना रखा है इंडिया में कि फेल होना तो मतलब इट्स ओके टू फेल, व्हाट मैटर्स इज यस यू राइज अप अगेन और नॉट, बिकॉज ऐसा कोई है ही नहीं कि कभी फेल किया ही नहीं है, या छोटे छोटे फेलियर्स कभी किसी को नहीं मिले हैं। हो सकता है वो फेलियर 1 घंटे में मिल रहा हो, दिन के अंदर, कि यार उस घंटे में हमने एफिशिएंटली काम नहीं किया, कोई बात नहीं, बट व्हाट अबाउट द सेकंड हाफ? सो इट्स ऑलवेज द कमिंग बैक व्हिच मैटर्स मोर देन दीज फेलियर्स हियर एंड देयर, बिकॉज नोबडी इज अनसरमाउंटेबल। तो कुछ है ही नहीं कि भाई कभी फेल होना ही नहीं है, होंगे ही नहीं, और सब कुछ ऑल विल बी ग्रीन, दैट इज हाउ इट इज नॉट। तो वो एक मिसकंसेप्शन है। तो not only to how to overcome, but as you just said ki consistency, that is यस, important. कंसिस्टेंसी इज द की कहते हैं, और वो सही में यूपीएससी एग्जाम में बहुत ज्यादा जरूरी है। That's good. True, true, true. Cool. और फिटनेस मेडिटेशन? हाँ सर, मेडिटेशन में म्यूजिक, मेडिटेशन म्यूजिक थी एक मेरे पास ऐप थी, वो मैं रोज सुबह सुनती थी। 8-10 मिनट का म्यूजिक होता है वो। एंड उसके अलावा आई यूज टू वॉक अ लॉट। What was the app's name? सर मेडिटेशन के नाम से ही एक ऐप है वो, मैं देख कर बताऊंगी, अभी मुझे सही से याद नहीं आ रहा। कोई नहीं, कोई, we'll put it in the description. यस यस। एंड उसके अलावा यूज टू वॉक अ लॉट, तो वो मेरे लिए एक स्ट्रेस बस्टर टाइप चीज थी। That is also a must, because you should have some sort of your own time, so to say, कि ये वो वक्त खुद के साथ जिसमें आप रिलैक्स हो, या जिस भी तरह से। एंड फिटनेस भी यस चाहिए आजकल, मतलब यू शुड बी नॉट, I might not be the right person to comment. I'm a pretty lazy person, but still fitness is a important aspect of this preparation. के टाइम तो ज्यादा ही जरूरी हो जाता है। आप दो दो पेपर लिखने हैं, बैठना है, मतलब इट्स नॉट इजी, बहुत एग्जैक्टली सारा एक लिखना है। दिन। यस So, what do you have to say about our interview guidance program, like how we can improve, or how it was good, bad, whatever your frank comments? यस। तो सर आई वुड से कि एक चीज तो यही थी कि सबसे पहले जो चीज मुझे सही लगी, टेलीग्राम चैनल जो बना हुआ था, तो उसमें जो करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो शेयर होते थे, तो उसमें थोड़ा एक टच रहता था। एंड डेली की आपने शायद केस स्टडीज वगैरह भी भेजा करते थे टू प्रैक्टिस अपनी खुद से। तो वो चीज रियली हेल्प एक उसको उस वे में जाने के लिए कि क्या क्या पूछा जा सकता है, हाउ वी शुड प्रिपेयर। एंड मॉक इंटरव्यू भी सर आई वुड से पैनल मेंबर्स बहुत अच्छे थे। एंड पर्सनली मेरे को उनके जो क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे ना, दे वर वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। इट वाज नॉट लाइक कि उन्होंने सिर्फ मुझसे डैट से पूछा या बिना डैट के बाहर पूछा। तो एक बहुत ही बैलेंस्ड इंटरव्यू उन लोगों ने लिया था, एंड फीडबैक भी काफी अच्छा था। एंड आई इवन सजेस्टेड आपकी कोचिंग का नाम इंटरव्यू गाइडेंस के लिए, जब मुझसे मेरे इंटरव्यू के बाद लोगों ने पूछा था। तो इट रियली हेल्प मी अ लॉट। एंड उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इतना कोई मेजर चेंज की जरूरत है, या जो मैं आपको कुछ हाँ। सजेस्ट कर सकती हूँ। हाँ, मतलब वी हैड टेकन इट एज टेलीग्राम पे आर्टिकल्स डालना, मतलब वी हैड 3 parts टू इट। टेलीग्राम, अपने डैफ सेशंस, नॉट डैफ, अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन ओनली डैफ, यू हैव सीन इट। तो या वो केवल डैफ से नहीं। हाँ, हाँ सर, वो थोड़ा वही ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, जनरल सेशंस थे। जनरल सेशंस थे, और प्लस रियल मॉक विच शुड बी गिवन। तो हम लोगों ने भी ऐसे ही सोचा था, देयर शुड बी 3 stages टू इट, एक कनेक्ट बनाने के लिए, और लोगों को रोज अप समथिंग, बिकॉज इस बार एक और चक्कर था कि बहुत लंबे फेजेस थे, मतलब 3 phases में, फ्रॉम एग्जैक्टली दिसंबर टू, इट वाज लॉन्ग। सो अब किसी का मान लो 3rd phase है, तो 2-3 महीने का करंट अफेयर विल बिकम इम्पोर्टेंट, किसी का तुरंत है,
So we wanted that current affair part to be covered through Telegram by putting those stories और case study. Case study से ये होता है कि थोड़ा सा mentally you're ready, वहाँ कुछ पूछा तो बाकी answer is yours. You have to face it, and it's your personality which has to shine, and you have to reflect back. But हाँ, catalyst का role तो रहता है. That is what it can be. हाँ सर, एक कैटलिस्ट का रोल होता है, आइडिया लग जाता है कि चीजों को किस तरीके बस से हैंडल करना है। एक ये ना, ये भी लोगों को लगता है कि मतलब अकॉर्डिंग टू मी इट्स वेरी वेरी क्लियर कि नो बडी इन फैक्ट, नो कोचिंग टीचर मेंटर can completely change. There can be a crucial role, there can be really a good direction given, but it is the candidate who will have to work. Ultimately it is you who will have to do it. यस यस सर, राइटली सेड। ये होता है, हमें खुद करना है। और ये गलती स्टार्टिंग में कई लोग करते हैं, कई एस्पिरेंट्स करते हैं, They या तो depend वो on somebody. डिपेंड करेंगे किसी कोचिंग के ऊपर या फिर किसी पर्टिकुलर टीचर्स के ऊपर डिपेंड करेंगे। Right. आई विल हेल्प की जरूरत होती है, गाइडेंस की जरूरत होती है, आप अपने मेंटोर्स के टच में रहो, पर पूरा उन पे डिपेंड कर देना मत करो. इट इज नॉट राइट। आपको खुद को एनालाइज करना है, खुद की स्ट्रेंथ्स देखनी है, खुद को इम्प्रूव करना है, खुद पे जिम्मेवारी लेनी है, आप किसी उस पे नहीं डाल सकते। हाँ, so that part should also be मतलब very clear to everybody कि यार अल्टीमेटली हमें करना है और किस तरह से करना है, क्या करना है। उसमें आजकल बहुत सपोर्ट सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। हाँ यूट्यूब है, फ्री मटेरियल है, मतलब यू कैन, टेलीग्राम है, टॉपर्स के चैनल्स हैं, हमारे जैसे कुछ प्लेटफॉर्म्स है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बट अवेलेबिलिटी इज देयर, एक्सेसिबिलिटी पार्ट इज रिजॉल्व। इट्स यस। नॉट दैट कि एक्सेसिबिलिटी नहीं है। पर एट द एंड हमें यही ध्यान रखना है कि हमें खुद करना है जो करना है। खुद करना है। और अनदर प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, अबंडेंस, की इतना ज्यादा है तो चूज भी करना है कि कहाँ से करना है और कैसे करना है। मतलब कुछ चैनल्स, कुछ लोगों को आप फॉलो करते रहो, उनसे सीखो, डाइवर्सिटी के लिए सेकंड ओपिनियन कहीं लग रही है तो लो और खुद को करेक्ट करो, दैट्स इट। हाँ, ये मेरे साथ भी होता था, मतलब उस टाइम प्रिपरेशन के टाइम कि ये भी देख ले, वो भी वीडियोस देख ले, इनकी भी देख ले, बट आई मेड श्योर कि भाई मैं एक चीज जो मैंने अपने लिए खुद के लिए टाइम टेबल सोर्सेस सेलेक्ट कर लिए, मैं बस वही करूंगी, वही देखूंगी। तो हाउ डिड यू केम टू नो अबाउट अस? सर यूट्यूब चैनल, तो अभिजीत सर की वीडियोस देखती थी मैं, मोटिवेशनल वाली, फिर उस उधर से पता चला कि यूपीएससी प्रेप भी है, तो तब मैंने एनरोल किया था उसमें। अभिजीत सर स्ट्रैटेजी वीडियोस, वो भी लोगों को मतलब somehow people feel that he's talking to us, and the way the crisp advice which he gives is एग्जैक्ट। also good. सर भाई, उनकी एडवाइस बहुत क्रिस्प होती है, टू द पॉइंट होती है, मतलब रियल में ऐसा लगता है कि हमारे रियल प्रॉब्लम्स का आंसर थे। Yeah, that is there. So cool, will end our conversation on this note कि अभिजीत सर ऐसी एडवाइस देते रहें, लोगों को मोटिवेट करते रहें, और तनीषा जैसे लोग अपनी मेहनत से, खुद के प्रयास से आगे बनते जाएं और सेलेक्ट होते जाएं।